So we will start with a very quick recap of what we have learned in the last session. मतलब a very quick recap of surface tension और surface tension के जो basic concepts थे. For example, we started off with molecular theory of surface tension. आपको याद होगा सबसे पहले molecular theory में सबसे पहले हमने define किया था intermolecular forces. So idea is we want to understand why there is surface tension और आपको पता है surface tension की वजह से liquid drops have spherical shape, and also due to surface tension bubbles they also have spherical shape. And also you know that water spiders can walk on surface of water because एक free surface पे film बनता है जिसको आप film due to surface tension बोलते हो. It is like a stretched elastic membrane. तो कल हमने start किया था surface tension. We have already seen this in detail. आज सिर्फ एक रिवीजन होगा and then we'll go ahead to the next topic. So to understand surface tension सबसे पहले हमने define किया था what are intermolecular forces. So I hope you know what are intermolecular forces. The force of attraction between two molecules, they are known as intermolecular forces. इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है cohesive, एक होता है adhesive. So cohesive force is the force of attraction between two molecules of same substance, जैसे water molecule and water molecule. Then you have adhesive force. It is a force of attraction between two molecules of different substance, जैसे force of attraction between water molecule and glass molecule. इसके बाद हमने define किया था something called as range. So we have defined what is called as range of molecular force. इसको आप range of molecular attraction भी बोलते हो. The maximum distance up to which intermolecular forces are effective. मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं होगा अट्रैक्शन का फोर्स. सो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. फिर हमने देखा था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब an imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force. तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल को सेंटर पे रखा, and by keeping this at center we draw an imaginary sphere such that the radius of this sphere is equal to range of molecular force is known as sphere of influence. ये imaginary sphere है, an imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force. और इसका मतलब ये होता है कि इस imaginary sphere में अगर कोई और molecule आता है तो that molecule will experience attractive force due to molecule at the center, and it will also exert force of attraction on the molecule at the center. मतलब खुद भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट भी करेगा. सो इट विल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स. गुड. देन इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी, लेकिन उससे पहले हमने डिफाइन किया था सरफेस फिल्म. तो अगर आपको याद होगा वी हैव टेकन लिक्विड जैसे कि वाटर, एंड ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है यहाँ पे एक लेयर हमने इमेजिन किया था, और उस लेयर का थिकनेस कितना था? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. तो द लेयर एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to range of molecular force is known as surface film. तो x y ये फ्री सरफेस है, x डैश y डैश ये एक पैरेलल सरफेस है, और ये पैरेलल सरफेस फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? r. तो ये जो सरफेस फिल्म है, द लेयर एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to range of molecular force is known as surface film. Good. Then to understand सरफेस टेंशन हमने तीन मॉलिक्यूल लिए थे. कहाँ थे तीन मॉलिक्यूल? एक था वेल इनसाइड,
तो वन मॉलिक्यूल यू हैव टेकन वेल इनसाइड, एक था इन द सरफेस फिल्म और एक था राइट एट द फ्री सरफेस. So we have taken three molecules, A molecule which is well inside, B molecule which is somewhere in the surface film, और C molecule which is right at the free surface of liquid. तो हमने तीन molecules imagine किए थे और इसके आगे के टॉपिक सब इसके साथ कनेक्टेड है तो पता होना ही चाहिए. You have to know this, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. तो surface film, sphere of influence, cohesive force, adhesive force, ये सब कुछ पता होना चाहिए. ये जो मॉलिक्यूल है विच इज वेल इनसाइड, इसको हमने नाम दिया था मॉलिक्यूल ए, ये था मॉलिक्यूल बी एंड दिस वाज मॉलिक्यूल सी. तो मॉलिक्यूल ए विच इज वेल इनसाइड द लिक्विड, उस पे सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस एक्ट होते हैं एंड इट एक्सपीरियंसेस इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन. क्योंकि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है. अगर ये खुद वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ बाकी सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है. And hence it will experience equal cohesive force in all direction and hence the forces will cancel out. मतलब इस पे एक्चुअली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है लेकिन नेट फोर्स जीरो है. तो इस पे नेट फोर्स जीरो है. रिमेंबर दिस इज एन इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर आप बी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो बी मॉलिक्यूल के जो साइड वाइज फोर्सेस है वो तो कैंसिल हो जाएंगे. बी मॉलिक्यूल को इस राइट साइड से अगर कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड से भी कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा तो दैट विल कैंसिल आउट. लेकिन इफ यू सी बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एक छोटा सा पार्ट इज इन एयर और एयर का डेंसिटी होता है बहुत कम. एयर विल अट्रैक्ट दिस मॉलिक्यूल बी बट दिस एडहेसिव फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल हेंस इट इज नेग्लिजिबल. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बी मॉलिक्यूल पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है और ये नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? कोहेसिव फोर्स है ड्यू टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो एनी मॉलिक्यूल इन द फिल्म, सरफेस फिल्म में कोई भी मॉलिक्यूल हो, हमने तो बी सिर्फ एज एन एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ बी मॉलिक्यूल है. यू हैव बिलियंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में होंगे ऑल दोस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स. ये याद रखना. सेम थिंग इज ट्रू फॉर सी मॉलिक्यूल. अब सी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एग्जैक्टली हाफ पार्ट इज इन एयर एंड हाफ इज इन लिक्विड. अगेन एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है. तो सी मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स है? कोहेसिव एंड दैट इज नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म पे या फिर डायरेक्टली फ्री सरफेस में होंगे ऑल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स. गुड. तो अगर फोर्स डाउनवर्ड्स है तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स. तो बिकॉज ऑफ द नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स in the surface film they basically go down and this minimizes the number of molecules in the surface film. इसकी वजह से surface film में number of molecules हो गया कम. अब अगर number of molecules कम हो गए तो कुछ ही molecule बचे. अगर कुछ molecule बचे तो they start attracting each other strongly and the layer becomes like a stretched elastic membrane and this is why you have surface tension. यहाँ तक clear? Good. तो ये था हमारा सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थ्योरी. बट अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम आता है कि अब मैंने आपको कल बताया था ये जो सरफेस टेंशन है ये हर एक लिक्विड के लिए है. वाटर के लिए भी है, पानी के लिए भी है, कोई और लिक्विड होगा उसके लिए भी है. तो अगर मुझे दो लिक्विड्स का सरफेस टेंशन कंपेयर करना है तो ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है ना. यू कैन नॉट कंपेयर थ्योरेटिकली. हर एक लिक्विड में यही हो रहा है. सिर्फ इतना है कि कहीं पे ज्यादा सरफेस टेंशन होगा, कहीं पे कम होगा. तो यू वांट टू हैव अ फॉर्मूला, मतलब आपको अभी सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए. तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन. तो पहले हम लोग सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे आज. तो वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन एंड देन वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी एंड देन वी विल डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. तो अगर हमको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, मान लो ये पानी का ग्लास है. तुम इसको साइड से देख रहे हो, साइड से है ना, वाटर बॉटल को साइड से देख रहे हो. लेकिन तुम अगर टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा?
व्हाट इज द शेप ऑफ दिस बॉटल? सर्कुलर। अभी ये जो आप देख रहे हो ना डायग्राम, ये आप साइड से देख रहे हो, लुकिंग फ्रॉम द साइड, राइट? अगर इसको मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो व्हाट आई विल सी इज सर्कल। तो मैं अब यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। तो ये है फ्री सरफेस। इसी को अगर तुम साइड से देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, और नीचे, इसके नीचे भी तुमको पानी दिखेगा। बट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ये फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बनाने के लिए भी हम फ्री सरफेस ही यूज कर लेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, हमारे पास ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इस पे हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। वी ऑलरेडी नो दिस। तो वी नो दैट। अब मैं ज्यादा थ्योरी लिखूंगा नहीं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी, आगे 3-4 टॉपिक बहुत ही थ्योरी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओनली दैट आई विल नोट। सो वी नो दैट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, the free surface of liquid behaves like a stretched elastic membrane, behaves like a stretched elastic membrane, stretched membrane basically. And now what we will do is, ये जो फ्री सरफेस था, इस फ्री सरफेस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज इमेजिनरी लाइन, लेट अस से सम लाइन PQ ऑफ लेंथ L, इसका लेंथ L है। सो इमेजिन अ लाइन PQ of length L on the free surface of liquid, on the free surface of liquid. और बाय द वे, ये जो लाइन है ये टेंजेंशियल है, बिकॉज दिस इज टचिंग द सरफेस। सरफेस को सिर्फ टच कर रहा है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो सीधा अंदर जा रहा है, तो दैट इज नॉट टेंजेंशियल, दैट इज नॉर्मल। ये टेंजेंशियल है। अब ये भले ही फ्री सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया, लेकिन ये पूरे के पूरे सरफेस पे क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि लिक्विड कौन सा लिया तुमने? वाटर। इसका मतलब इस इमेजिनरी लाइन पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इस पूरे इमेजिनरी लाइन पे यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर इस इमेजिनरी लाइन पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यू विल हैव वाटर मॉलिक्यूल्स हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा। तो ये जो उसके साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वेरी गुड। और वो फोर्स होगा टेंजेंशियल, क्योंकि वो फोर्स जो है वो अगेन इट इज टचिंग द सरफेस। तो ये जो इमेजिनरी लाइन हमने लिया जिसका लेंथ L था, उस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, दे एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्सेस। और कौन से फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि एडिटिव फोर्स वैसे भी निग्लिजिबल है। So all the molecules on this imaginary line PQ will experience cohesive but tangential cohesive forces, as if अभी आपको पता है, मैंने कल बताया था एग्जांपल, अगर मैं एक कपड़े को दोनों साइड से खींचूं तो क्या होता है? स्ट्रेच तो होता है, बट इट लुक्स लाइक इट इज गेटिंग टीयर्ड अपार्ट, एज इफ वो फट रहा है ना, टीयरिंग होता है। तो सिमिलरली ये जो लाइन है PQ, इस पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल पे फोर्स है, दोनों साइड से है, दोनों साइड से है। तो यहाँ पे होगा क्या? इट विल लुक लाइक एज इफ दिस फोर्सेस आर टीयरिंग अपार्ट द सरफेस। मतलब ये सरफेस को फाड़ने का काम कर रहे हैं फोर्सेस। दिस फोर्सेस आर नोन एज टेंजेंशियल फोर्सेस बाय द वे। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, यस इट इज इमेजिनरी, कांट हेल्प इट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो तुमको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, वैसे सिंपल है, इट्स टू सिंपल। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इमेजिनरी लाइन, लाइन का लेंथ L। अभी ये लाइन कहीं पे भी लेता तो पूरे सरफेस पे तो मॉलिक्यूल्स है, तो लाइन पे भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। तो उसके साइड में भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। तो ये जो साइड में मॉलिक्यूल्स है, क्या कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। किस पे? ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन। और ये फोर्सेस कैसे है? टेंजेंशियल है, दोनों साइड से है। अगर मैं एक पेज को दोनों साइड से खींचूं तो क्या होगा? इट गेट्स टीयर्ड अपार्ट। So these forces are like they are tearing apart the surface. Simple. Clear यहाँ तक?
अब इमेजिन ये इस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है उस पे अगर टोटल फोर्स एफ है, एफ, तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स है, क्योंकि हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं। वाई? अब देखो मैं बात कर रहा हूँ फोर्सेस ओनली ऑन द सरफेस, और कौन से फोर्सेस? टेंजेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है ना कि नीचे फोर्स नहीं, नीचे फोर्स था कि नहीं? कौन सा था नीचे फोर्स? कोहेसिव। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, तो वो कौन सा फोर्स लगाएंगे? कोहेसिव। लेकिन वो टेंजेंशियल है क्या? नहीं। वेरी गुड, वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स। ये कौन सा है? टेंजेंशियल। तो हम सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए कौन से फोर्स का यूज करते हैं? टेंजेंशियल। इट डज नॉट मीन कि इस लाइन के नीचे जो मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है, और हमको पता है कि हम सरफेस के फोर्सेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अंदर के फोर्सेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए सरफेस टेंशन डिफाइन करते वक्त, मैथमेटिकली डिफाइन करते वक्त, हम सिर्फ कौन से फोर्स लेते हैं? टेंजेंशियल, ओनली टेंजेंशियल। आई रिपीट अगेन, इट डज नॉट मीन कि अंदर फोर्सेस नहीं है, अंदर भी है। राइट, अंदर नहीं होता तो फिर मॉलिक्यूल नीचे जाता ही क्यों? डाउनवर्ड फोर्स तो है ही। तो ये टोटल फोर्स हो गया। अब टू डिफाइन सरफेस टेंशन, वेरी सिंपल। सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, टेंजेंशियल, टोटल टेंजेंशियल फोर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं, हो गया सरफेस टेंशन, डन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज tangential force per unit length acting on the molecules of imaginary line PQ taken on the surface of the liquid। खत्म, डन। तो मैं वापस बता देता हूँ, एंड आई विल अगेन राइट डाउन लिटिल बिट ऑफ पॉइंट्स हियर। तो हमने फ्री सरफेस लिया, वी नो दैट फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। देन वी हैव इमेजिन्ड द लाइन PQ of length L on the free surface of liquid। अब इसके आगे all the molecules on this line, all the molecules on this imaginary line, on this imaginary line experience tangential cohesive forces due to neighboring molecules, as if they are tearing apart the surface। ये इतना नहीं लिखना, ठीक है, एज इफ they're tearing apart the surface, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए होता है कि टेंजेंशियल है, इसके लिए हम बोलते हैं उसको let Ft be the total tangential force, on the molecules on line PQ। Therefore, surface tension is defined as ये डेफिनेशन ही है उसका, is defined as tangential force per unit length। गुड, हमने डिफाइन कर दिया, हो गया, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका। तो मैंने बताया था जब जब नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा तब तब क्या करोगे? SI यूनिट। तो बताओ, न्यूटन पर मीटर, सिंपल। और डायमेंशंस क्या आएंगे? फोर्स होता है M1 L1 T-2 अपॉन L1, कैंसल। तो यू हैव M1 T-2, ये आ गया डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब एक चीज याद रखो, टेंशन ये आपने पहले भी कहीं सुना है, कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? स्ट्रिंग के केस में, पेंडुलम के केस में, वो टेंशन फोर्स होता है सरफेस, और वो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, वायर की प्रॉपर्टी होती है वो। ये सरफेस टेंशन है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। राइट, दिस इज नॉट ओनली फोर्स, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसके डायमेंशन M1 L1 T-2 है, इसके डायमेंशन M1 T-2 है। और एक गड़बड़ होती है, जब डायमेंशन लिखते हो तो ये भी T वो भी T। ये T क्या है? सरफेस टेंशन है। ये T क्या है? टाइम है।
तो ये भी कंफ्यूजन रहता है, तो एक काम करो, इसलिए बहुत सारे बुक्स में क्या किया है ना, सरफेस टेंशन को एस से डिनोट किया है। तो वी विल आल्सो यूज द सेम नोटेशन एस। तो दिस इज सरफेस टेंशन एस, तो ये आ गया एस। तो दिस इज नॉट बेसिकली टाइम, दिस इज सरफेस टेंशन एस। तो ये दो कंफ्यूजन याद रखना, सरफेस टेंशन इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स अपॉन लेंथ। गुड। नंबर 2, वो जो तुमने टी बोला था दैट वाज सरफेस टेंशन, और डायमेंशन में जो टी था दैट इज फॉर टाइम। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, इजी कॉन्सेप्ट था। तो अभी डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं, अब आपको पता है कैसे लिखना है, कैसे लिखना है बताओ। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज tangential force acting per unit length on the molecules of an imaginary line drawn at the free surface of liquid. Okay, right? So surface tension is defined as tangential force acting per unit length on the molecules of imaginary line drawn on the free surface of liquid. तो ये समझ में आने के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, ये हमको वापस काम में आएगा। नाउ सरफेस एनर्जी के लिए आपको ये डायग्राम वापस लगेगा। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली वेरी गुड, इट्स वेरी बैड, बट ठीक है, वी विल ड्रॉ इट ऑन अनदर पेज। ओके गुड। तो सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से हम डिफाइन करेंगे सरफेस एनर्जी। तो कमिंग बैक टू दिस, अब व्हाट डू यू नो ऑलरेडी इज, आपको ऑलरेडी क्या पता है कि आपके पास ये जो सिचुएशन था जिसमें एक मॉलिक्यूल था वेल इनसाइड, वेल इनसाइड मॉलिक्यूल जो है ए मॉलिक्यूल, उस पर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, सबसे ज्यादा, राइट राइट। लेकिन व्हाट इज द नेट फोर्स? 0। और जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स है, उन पे नेट फोर्स कौन सा है? कोहेसिव, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? नीचे। दिस मॉलिक्यूल्स विल गो डाउन। ऐसा तो फिर सरफेस फिल्म का हर एक मॉलिक्यूल आ जाएगा नीचे, तो कभी सरफेस फिल्म बचेगा ही नहीं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे आए, इसको रिप्लेस करने के लिए जो इनसाइड के मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ जाएंगे? ऊपर, राइट। लेकिन इन पे नेट फोर्स कितना है? 0। लेकिन कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल अपने ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब एक चीज और समझ लो तुम, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स में वर्क डन से ही आता है। मैंने पहले भी बताया है आपको, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो ये जो वर्क डन है, इट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ स्टोर हो गया? सिस्टम ऑफ चार्जेस में। कमिंग बैक टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट था। हमारे पास अर्थ है और एक मास है एट सम हाइट h, फिर आप उसको एक नए पोजीशन पे लेके जाते हो, एक न्यू हाइट पे लेके जाते हो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होता है? वर्क डन। अगेन वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो वो वर्क डन कहाँ स्टोर जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कमिंग टू दिस पॉइंट, और इवन इलास्टिसिटी की अगर बात करोगे, याद है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स? याद है? इलास्टिक एनर्जी याद है? याद है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, गलत, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वो था इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन था इलास्टिक एनर्जी। वो भी कहाँ से आया था? एक वायर था, वायर के नीचे आपने एक मास लगा दिया, मास मतलब लोड लगा दिया, उस लोड ने क्या किया? एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। अपने आप तो वायर का लेंथ बढ़ा नहीं ना, लेंथ किसने बढ़ाया? उस लोड ने। मतलब वो जो लोड था उसने वर्क किया किस पे? वायर पे। वर्क, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो स्टोर्ड इन द कंप्लीट वायर, जिसको आप बोलते हो इलास्टिक एनर्जी, करेक्ट, राइट। स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो, इलास्टिक एनर्जी बोलते हो, दोनों नाम है उसके। तो व्हाट डू यू नोटिस इज पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ से आ रहा है? वर्क डन से। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो जागते रहो, अभी से ही कुछ लोग
जागो जागो। सबसे ज्यादा फोर्स मॉलिक्यूल ए पे है कि बी पे है कि सी पे है? ए पे, राइट। लेकिन ये फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। बी और सी पे नेट फोर्स है डाउनवर्ड्स। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में होंगे उस पर नेट फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे आएंगे। अगर ऐसा होता रहा तो सारे के सारे सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, तो सरफेस कभी बचेगा ही नहीं। लेकिन सरफेस होता है हर एक लिक्विड का। इसका मतलब अंदर से डीप इनसाइड से कुछ मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा ऊपर। अपने आप ऊपर जाएगा नहीं, वर्क हैज टू बी डन। दो चीजें हैं, एक तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स, नंबर टू वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल जो था ये ऊपर गया, सरफेस फिल्म में गया। तो सरफेस फिल्म में जाने के बाद अब बेसिकली वर्क डन हुआ। तो वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये जो वर्क डन हुआ टू टेक द मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप इनसाइड टू द सरफेस, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड वेयर? कहाँ स्टोर हुआ? कहाँ? मैं वापस रिपीट करता हूँ। सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे थे, नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। नीचे के मॉलिक्यूल के ऊपर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप ऊपर जाएगा नहीं। अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो वर्क हैज टू बी डन, राइट। वर्क डन क्यों हुआ? टू टेक दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप इनसाइड टू द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म में लेके जाने के लिए। तो अल्टीमेटली फाइनल पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्या रहेगा? सरफेस फिल्म। तो जो वर्क हुआ टू टेक द मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप इनसाइड टू द सरफेस फिल्म, वो कहाँ स्टोर हो गया? सरफेस फिल्म। क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ, आखिरी में मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच गया? हाँ, तो एनर्जी तो मॉलिक्यूल के पास थी ना, तो फिर एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? So this work done is stored in the form of potential energy in the surface film and is known as surface energy. इसको सरफेस एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरफेस में स्टोर हो गया। यहाँ तक क्लियर? पक्का? पक्का? आई रिपीट अगेन। अभी वो सब थ्योरी में लिखूंगा नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। वी नो दैट। व्हाट डू यू नो इज, व्हाट डू यू नो? The molecule which is deep inside the liquid experiences maximum cohesive force, right? And the molecules in the free surface, in the surface film, experience net downward cohesive force, because of which most of the molecule from the surface they go down. And to replace this molecule, molecules from deep inside has to be taken up. तो अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क हैज टू बी डन। तो ये जो डीप इनसाइड के मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म तक लेके जाने में जो वर्क डन हुआ, इट इज स्टोर्ड इन द सरफेस फिल्म। इसका मतलब सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स विच आर इनसाइड। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको आप बोलते हो सरफेस एनर्जी। So all the molecules which are present in the surface film, they have more potential energy, extra potential energy compared to the molecules which are deep inside. Correct? और ये जो extra energy होता है इसको आप बोलते हो surface energy. यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा। The idea is we know that all the molecules in the surface film, experience, क्या एक्सपीरियंस करते हैं? नेट डाउनवर्ड फोर्स, एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, and hence they move downwards. The molecules which are deep inside, experience, हाँ कोहेसिव फोर्स तो करते हैं, experience maximum cohesive force. Hence, to take these molecules कहाँ लेके जाना है इनको? सरफेस फिल्म में। मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस फिल्म, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क हैज टू बी डन
और ये वर्क डन क्यों हुआ? टू टेक द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीप इनसाइड टू द फिल्म। इसका मतलब द मॉलिक्यूल्स विद इन द फिल्म, the molecules within the film possesses, क्या है इनके पास? मोर एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। वेरी गुड, इज नोन एज सरफेस एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? अभी एक इसके आगे डेरिवेशन भी है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बैकग्राउंड है। अगर ये बेस नहीं तो आगे समझेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज, बीट दिस ऑब्जेक्ट। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देता हूँ, कहाँ जाएगा ये? नीचे। क्यों? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए एवरी सिस्टम ट्राइज टू ब्रिंग इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैं अगर यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो पेन ये फ्लोर तक जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का हाइट ज्यादा है, उस पॉइंट का हाइट कम है। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। मैंने खिड़की के बाहर अगर हाथ निकाला और पेन छोड़ दिया तो वो ग्राउंड तक जाएगा, क्योंकि नीचे ग्राउंड इज इवन एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एवरी सिस्टम ट्राइज टू ब्रिंग इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी था, कहाँ पे था? सरफेस पे। तो the surface film will try to attain a state of minimum potential energy। अब एक चीज और ये फिट कर लो सिस्टम के अंदर। 4-5 चैप्टर है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मतलब सिमिलर। जहां जहां पोटेंशियल, जहां जहां वर्क डन हो वहां वहां पोटेंशियल होता है, जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी हो वहां वहां सिस्टम क्या करता है? ट्राइज टू ब्रिंग इटसेल्फ इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन। ये हमने और एक जगह पे देखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वहां पे भी मैंने यही बोला था कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन था, एक सिचुएशन ऐसा था और एक सिचुएशन ऐसा था। पहले केस में तुम्हारे पास एक बॉल है, तुमने इसको अगर शिफ्ट करके छोड़ दिया तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिकॉज दैट पोजीशन इज अ पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मिनिमम हाइट है। यहां से अगर मैंने रिलीज किया तो इट विल नेवर कम बैक, क्योंकि ये नीचे जो है ना, यहाँ हाइट कम है। तो दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको बोलते हो अनस्टेबल, इसको बोलते हो स्टेबल। यहाँ पे हाइट क्योंकि सेम है, आपने डिस्प्लेस करके इसको छोड़ भी दिया तो ऑब्जेक्ट विल नॉट गो एनीवेयर, इट विल जस्ट रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, क्योंकि इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। तो ये अभी याद रखो कि जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुनोगे तो द सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऑलवेज, चैप्टर कोई भी हो, कुछ भी हो, चार्ज हो, मासेस हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, इट विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इटसेल्फ इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो सरफेस है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? सरफेस में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ट्राई करेगा? टू ब्रिंग इटसेल्फ इन मिनिमम एनर्जी स्टेट। सो द सरफेस ट्राइज टू ब्रिंग itself in a state of minimum potential energy। very good, minimum potential energy। कैसे करेगा? कैसे करेगा पता है? पता है कैसे करेगा? बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस एरिया। मैंने कल भी बताया था कि स्फीयर ही क्यों बना, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम। दैट इज द रीजन। तुमको यहाँ पे समझ में आया होगा ये सब कर कौन रहा है? ये सब कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी था। एक्स्ट्रा एनर्जी होना मतलब यहाँ पे सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी है, और जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड सुनोगे वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइजेशन होगा ही होगा। तो ये सरफेस फिल्म मिनिमाइज कैसे करता है खुद को? खुद का एरिया कम करके। और एरिया कम कैसे होगा? बाय चेंजिंग द शेप। अगर आप लिक्विड को फ्री कर दोगे तो वो खुद को स्फीयर बना लेगा। अगर लिक्विड को फ्री नहीं करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगा। सिंपल। So the surface tries to bring itself in a state of minimum potential energy. This is done by reducing the surface area, right?
यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? क्योंकि आगे का डेरिवेशन ये दो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सरफेस फिल्म में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जहां हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए सरफेस क्या करता है, खुद का एरिया कम करता है। अब हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। अब रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो आई होप यू रिमेंबर सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे किया था। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन इज एफ अपॉन एल। तो सरफेस टेंशन इज एफ अपॉन एल। तो व्हाट इज एफ? एस इंटू एल। सिर्फ ये जो फोर्स है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इसके आगे इंटरेस्टिंग है, अभी बिल्कुल बोर नहीं होगा, सिंपल। राइट, जतरा में जाते हैं, वो एक लिक्विड मिलता है जिसको सोप सॉल्यूशन बोलते हो, उसमें एक वायर का फ्रेम नॉर्मली सर्कुलर शेप में होता है, वो डिप करते हो और वो डिप करके बाहर निकालते हो तो क्या दिखता है? एक लेयर बनता है वहां पे। पहले तो लेयर बनता है, फिर ब्लो करते हो, फिर बबल बन जाता है। तो यू पुट दैट स्मॉल वायर इनसाइड दिस सोप सॉल्यूशन, टेक इट आउट एंड यू सी देयर इज अ फिल्म। तो जहां पे वो सर्कुलर फ्रेम है उसके अंदर फिल्म बनता है, एंड देन यू ब्लो एयर एंड इट बिकम्स अ बबल। तो सेम सिचुएशन है। अब सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो वायर का फ्रेम है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का नहीं है, हमारे पास है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ मेटालिक वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और उसमें से एक साइड हमने बना दिया मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन। मतलब एक साइड जो होगा दैट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन। तो एक ही साइड है विच इज फ्री टू मूव, ये साइड। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटल का फ्रेम है, मेड अप ऑफ सम मेटल ऑफ कोर्स, लेट अस गिव इट सम नेम। इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे चलो ये है ए बी सी एंड डी। तो व्हेन यू डिप दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम इन सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, क्या होगा? क्या बनेगा यहाँ पे? फिल्म। तो यू विल सी देयर इज अ फिल्म हियर ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सरफेस फिल्म बन गया, सरफेस फिल्म। तो दिस इज सरफेस फिल्म। सिर्फ डिफरेंस है कि तुम इसको ब्लो नहीं करोगे, इसका कोई बबल नहीं बनाना हमको। हमको यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना है, किसका? सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अभी अभी तुमने ही बोला व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सरफेस टू रिड्यूस इट्स एरिया। टू रिड्यूस इट्स एरिया, इसका मतलब होगा क्या? जैसे यहाँ पे फिल्म बना, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा और ये फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टू रिड्यूस इट्स एरिया? रिड्यूस कैसे होगा? बाय श्रिंकिंग। इसका मतलब हर एक साइड अंदर की तरफ जाने लगेगा। ईच ऑफ दिस साइड विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड। लेकिन इन चार साइड में से एक ही मूविंग है, कौन? कौन? सीडी। वेरी गुड। तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो एक ही साइड पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? साइड सीडी पे, एंड दैट इज इनसाइड। मतलब यहाँ पे एक फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज ट्राइंग टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। एरिया रिड्यूस करना, ये व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड। तो या लेंथ कम कर लो या ब्रेड कम कर लो। अब ये जो साइड सीडी वो अंदर आएगा तो लेंथ तो कम हो ही रहा है ना, राइट? ये साइड अंदर आएगा तो एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? इस साइड को लेंथ को बोल दूंगा एल। लेट अस से दिस साइड लेंथ इज एल। हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम था, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, बाहर निकाला, एक फिल्म बन गया। सरफेस फिल्म का प्रॉपर्टी होता है टू रिड्यूस इट्स एरिया। मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है हर एक साइड पे, दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स इज टू रिड्यूस एरिया। लेकिन तीन साइड्स क्या थे? फिक्स थे। मूवेबल कौन था? सिर्फ एक था। तो ये कहाँ आने लगेगा? अंदर की तरफ। क्लियर? अगर मुझे एरिया कम होने की जगह पे एरिया बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज आउटसाइड ना, अपोजिट टू इट। ये जो फोर्स है एफ डैश, दिस एफ डैश फोर्स विल डू व्हाट? इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। लेकिन ये जो फोर्स है एफ डैश,
This should be equal in magnitude to F, opposite in direction but equal in magnitude, क्योंकि F ये एरिया कम करेगा, F डैश ये एरिया बढ़ाएगा। अभी some स्टूडेंट लास्ट ईयर आस्क्ड मी कि इक्वल ही क्यों होना चाहिए। तुम सोचो बताओ, सपोज कम हुआ तो क्या होगा? अगर F डैश कम हुआ, F ज्यादा हो तो क्या होगा? वेयर इज रिजल्टेंट फोर्स? तो एरिया बढ़ेगा कि कम होगा? वेरी गुड, सही है। और अगर इमेजिन ये एफ डैश फोर्स एफ से ज्यादा हो गया, मैंने इसलिए मैंने बोला कि मुझे हर एक थ्योरी का हर एक वर्ड बोलना पड़ता है। मैंने यहाँ पे ना एक चीज बोली थी, लिखी भी है, लिखा भी है कहीं, तो मैंने एज इफ इट इज टीयरिंग अपार्ट। तुमने अगर फोर्स ज्यादा लगा दिया गया, film is gone, it will basically get teared. So that is the reason कि ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना, the magnitude should be equal to, तो धीरे धीरे हम इतना ही फोर्स लगा के इसका एरिया बढ़ा देंगे। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, गॉन, फिल्म इज गॉन। यहां तक क्लियर? पक्का? राइट। अब व्हाट इज दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अभी तो पूछा था मैंने व्हाट इज सरफेस टेंशन, आपने बोला फोर्स अपॉन लेंथ। फिर बोला व्हाट इज फोर्स, आपने बोला सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। यहां तक क्लियर? राइट। बुक नोट्स में सिर्फ मैंने टी लिखा है, ओनली थिंग इज एसक्यूआर पे क्या लिखा है मैंने? टी। आपको टी लिखना है, आप टी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब अगर आपके पास एक फ्री सरफेस है, एक सिंगल फ्री सरफेस है, तो सरफेस टेंशन इज 1 टाइम, मतलब ओनली एस। अगर 2 फ्री सरफेस है तो 2 टाइम्स। अब तक हम जो बात कर रहे थे लिक्विड की, ये जो लिक्विड था इसमें सिर्फ ऊपर का सरफेस फ्री था, नीचे क्या है इसके? पानी है। वो फ्री है क्या? नहीं, वो ऑक्यूपाइड है ना, इट इज नॉट फ्री। करेक्ट। लेकिन जब तुम सरफेस फिल्म बनाते हो, वही वायर के फ्रेम को लिक्विड के अंदर डिप किया, बाहर निकाला, तो उसके कितने फ्री सरफेस होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, एक बाहर का और एक पीछे साइड का। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2, तो 2 टाइम्स आएगा, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस। तो मुझे बताओ अभी, एक लिक्विड ड्रॉप है और एक लिक्विड बबल है, किसमें 2 आएगा, किसमें नहीं आएगा? बबल के इनसाइड क्या होता है? एयर, तो वो फ्री है। आउटसाइड क्या होता है? तो वो भी फ्री है। तो कितने फ्री सरफेस है? 2। ड्रॉप के इनसाइड क्या होता है? तो फ्री है क्या? आउटसाइड क्या है? तो फ्री है। यस, तो सरफेस टेंशन विल बी ओनली वंस, और फॉर बबल इट विल बी ट्वाइस। तो ये फिल्म है, फिल्म के कितने फ्री सरफेस है? 2, एक बाहर वाला और एक अंदर का। दैट इज व्हाई यू विल राइट हियर 2। यहां तक क्लियर? गुड। पक्का? हमको किसका रिलेशन चाहिए? किसके साथ? सरफेस एनर्जी। मैंने बोला सरफेस एनर्जी कहां से आता है? वर्क डन। वर्क डन कौन करता है? नहीं, वर्क डन कौन करता है? फोर्स। तुमने फोर्स लगा दिया, ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स एरिया को बढ़ा देगा। एरिया को बढ़ाएगा मतलब ये जो सीडी साइड है इसको स्लाइड करके बाहर लाएगा। ये मूवेबल है, याद रखना। तो यू विल हैव न्यू पोजीशन नाउ, सी डैश एंड डी डैश। तो एरिया बढ़ गया। लेट अस से ये जो फोर्स एफ डैश है इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। स्मॉल कितना? डी एक्स। तो इट डज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, बिकॉज ऑफ विच द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो इतना एरिया बढ़ गया। ये जो मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूं, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया एंड इट इज वेरी स्मॉल एक्चुअली। ज्यादा क्लियर? तो व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन से फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया? एफ डैश ने। कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया? लेकिन एफ डैश इज इक्वल टू एफ, बट एफ इज इक्वल टू 2SL dx। एस को रखता हूं यहां पे, 2 को लेके जाता हूं L के साथ, राइट। L इंटू dx मतलब L इंटू dx मतलब एरिया है। किसका एरिया? C डैश D डैश D, मतलब बेसिकली दैट इज इंक्रीज इन एरिया। तो L dx क्या है? इंक्रीज इन एरिया। लेकिन जब एरिया बढ़ रहा था
तो सिर्फ फ्रंट साइड का बढ़ रहा था, पीछे का नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ऐसा होता है कि एक ही साइड से एरिया बढ़ रहा है, पीछे से बढ़ नहीं रहा, ऐसा होता है? ऐसा होगा कभी? मैं एक रुमाल को स्ट्रेच कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिख रहा है स्ट्रेच हो रहा है, पीछे से स्ट्रेच हो ही नहीं रहा है, ऐसा कभी होता है? वो दोनों साइड से स्ट्रेच होगा ना, दोनों साइड से बढ़ेगा। तो 2L dx इज तो टोटल इंक्रीज इन एरिया। तो ये जो 2L dx क्या है, ये क्या है? टोटल इंक्रीज इन एरिया। अभी आपको याद है वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस एनर्जी। तो ये कौन है फिर? और ये कौन है? सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और ये कौन है? बन गया ना रिलेशन, हो गया रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज dw by dA, मतलब इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इस पे नीट में क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, बताओ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। खत्म, डन। डन। अगर डायमेंशन चेक करोगे तो वापस वही मिलेगा। तो सरफेस टेंशन इज वर्क डन, मतलब एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी का डायमेंशन? एरिया m1t-2। क्लियर है यहाँ तक? गुड। आई विल रिपीट अगेन, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू थियोरेटिकल, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो बिफोर आई स्टार्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक, सम बेसिक्स। हाउ डू यू डिफाइन मैथमेटिकली व्हाट इज सरफेस टेंशन? टेंजेंशियल फोर्स acting on an imaginary line on the molecules of the imaginary line, right? Correct? याद है ना? हमने फ्री सरफेस लिया था, उस पर इमेजिनरी लाइन लिया था, उसका लेंथ था L, उस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल कोहेसिव फोर्स। टोटल फोर्स इज Ft, टोटल लेंथ इज L, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ इज सरफेस टेंशन। तो डिफाइन कैसे किया था आपने? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड as the tangential force acting per unit length on the molecules of imaginary line taken on the free surface of liquid. Number 2, surface energy का मतलब क्या है? जो डीप इनसाइड मॉलिक्यूल्स थे उस पर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स था, जो फिल्म में मॉलिक्यूल्स थे उस पर नेट कोहेसिव फोर्स था डाउनवर्ड्स। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है फिल्म में वो नीचे आ रहे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे, वर्क डन होगा। मतलब ये जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल है वो नीचे से आए हैं, तो उनके पास क्या है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलते हो तुम? सरफेस एनर्जी। अब हमको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन डिराइव करना है, लेकिन अगर हमको ये पता है कि सरफेस एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी हो तो सिस्टम ट्राइज टू ब्रिंग इटसेल्फ इन मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। और सरफेस फिल्म के केस में मिनिमम एनर्जी मतलब बाय रिड्यूसिंग इट्स एरिया। इसके आगे चालू होता है डेरिवेशन। अब हमको चाहिए था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो टू डिराइव रिलेशन हमने क्या लिया? हमने लिया एक मेटालिक फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, एबीसीडी। जरूरी नहीं मेटालिक है, सम रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो लेट अस कंसिडर a rectangular frame of some wire, rectangular frame ABCD, in which सिर्फ एक ही साइड मूविंग है, in which only side CD is free to slide without friction. आप बोलोगे विदाउट फ्रिक्शन क्यों? अरे फ्रिक्शन लोगे तो फिर वर्क हैज टू बी आल्सो डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। आपको रिलेशन किसका चाहिए? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो फ्रिक्शन डाल दिया तो फिर एनर्जी दो पैरामीटर से आएगा, एक आएगा फ्रिक्शन से, दूसरा आएगा सरफेस एनर्जी। तो दैट इज व्हाई वी आर निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन हियर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन को भी ओवरकम करो। याद है? क्लियर? फिर आप क्या करते हो? व्हेन दिस फ्रेम is dipped in a soap solution and taken out क्या बनेगा? a film, मतलब surface film is formed. Let us say, let
T be the surface tension. किसका surface tension? फिल्म किसका बना? सोप सॉल्यूशन का। तो T किसका है? सोप सॉल्यूशन का। T बोल दो, S बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, whatever you want to call this. T बोलो, चलो T बोलो। So T is surface tension of soap solution। और जो स्लाइडर था, CD साइड था, उसका लेंथ है L। L is length of side CD, लेंथ ऑफ साइड CD। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड था CD which was free to slide। ऐसा एक साइड था CD, वो ओरिजिनली था यहाँ पे। तो जैसे ही आपने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप किया, जैसे ही डिप किया यहाँ पे बन गया एक फिल्म, सोप सॉल्यूशन का फिल्म। यहाँ तक क्लियर? तो ये फिल्म क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेगा? हाँ, एरिया कम करेगा। एरिया कम कौन कर रहा है? फोर्स। हाँ, तो फिर वो बताओ ना। सो therefore a force due to surface tension acts on this film which tries to reduce the area of force due to surface tension acts on this film which tries to do what? Which tries to reduce area by pulling कौन सा साइड? साइड CD inside. This force is given by, this force is F equal to surface tension into length. Surface tension is T, length is L, लेकिन multiply by 2। ये 2 क्यों आया? Because there are two free surfaces। Very good। इस पे बोर्ड में बहुत बार आया है, derive the relation between surface area and surface tension and surface energy। ये है F। अब अगर इंस्टेड मुझे एरिया को कम नहीं करना, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे। तो टू इंक्रीज द एरिया, to increase the surface area, let us apply a force F dash which is equal in magnitude but opposite in direction। किसको opposite in direction? To that of F। And therefore F dash equal to F, that is equal to 2TL। Work done by this force is given by, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया, इसने वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया? DW। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज DX? वेयर DX is डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? किसका? साइड CD का डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइड CD। मैं इंटेंशनली स्लो जा रहा हूँ, अभी तक ये टॉपिक खत्म हो गया होता, नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म हो गया होता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया था F डैश बाहर की तरफ, और उस F डैश फोर्स ने ये जो CD साइड था इसको बाहर लाया एट अ न्यू पोजीशन C डैश D डैश, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया दिस इज DX। इसका मतलब यहाँ पे एरिया हो गया इंक्रीज, तो दिस इज increase in area DA। Good। So therefore what you can write down here is, इसके बाद आप लिखोगे therefore DW equal to F dash, लेकिन F dash खुद क्या है? 2TL DX। तो DW equal to what? T into 2L DX। But 2L DX is total change in area, that is DA। That is total change in area, actually total increase in area in this case, total increase in area। therefore आपको मिल जाएगा DW equal to T into DA, right? और this work done is stored in the form of surface energy। this work done
is stored in the form of surface energy, and therefore surface tension is equal to dW by dA. मतलब surface tension is surface energy per unit area. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में, इस फॉर्मूला पे, नॉट दैट एफ बाई एल। वो तो सिंपल था। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको ऐसे बोलेंगे, सपोज यू आर ब्लोइंग अ बबल तो कितने फ्री सरफेस, 2 ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, राइट। If the surface tension of the soap solution is 0.07, क्योंकि नॉर्मली वही होता है, find out what is surface energy, तो क्या फाइंड करना है, dW surface energy, वो क्या था, TdA, राइट। और T के साथ क्या लिखोगे, 2, क्योंकि बबल है, 2 फ्री सरफेसेस। What is tension, 0.07, change in area is final area minus initial area। अभी एक वर्ड यूज किया, फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग, मतलब पहले बबल था क्या, नहीं था, पहले तो फिल्म था आपके पास, बबल तो था नहीं। तो बबल ब्लो कैसे करते हो, बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट। तो पहले बबल नहीं था, तो इनिशियल एरिया कितना है, 0, बाद में बबल बन गया। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ बबल, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। और आर कितना बोला है आपको, 2 सेंटीमीटर, तो 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर -4, 10⁻², उसका स्क्वायर होगा ना, बराबर ना, तो 10⁻⁴। बस इसको कर लो मल्टीप्लाई, मिल गया आपको आंसर। दिस इज द सरफेस एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बबल, दैट इज द आइडिया। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर, पक्का। अभी हैव स्पेंड अराउंड ट्वाइस द टाइम इट रिक्वायर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक, डबल टाइम लगा दिया हमने। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर डाउट्स होंगे तो यू मे आस्क, नो प्रॉब्लम विद दैट। So do you have any doubts or can we go ahead to the next topic? हाँ, yes, this is what I was expecting. What he says is, ये फोर्स F है जो एरिया कम कर रहा है, हमने लगाया F', ये तो बैलेंस हो गया, एरिया बढ़ेगा कैसे, बराबर ना। जब तक फिल्म नहीं था तब तक एरिया चेंज हुआ, जैसे फिल्म बना तो एरिया चेंज हुआ, यस, श्रिंक हुआ। किसने किया, मतलब ऐसी बात है कि ये F फोर्स ने ऑलरेडी जो साइड CD था ना, उसको, उस साइड CD को ऑलरेडी श्रिंक करके अंदर लाया था, राइट। कौन से फोर्स ने, F। अगर F फोर्स ने dx डिस्प्लेसमेंट से एरिया कम कर दिया तो F' dx डिस्प्लेसमेंट से एरिया बढ़ाए, दैट इज द आइडिया। मतलब आप जब ये बात करते हो CD, ये एक्चुअली ऑलरेडी रिड्यूस्ड एरिया है, अब तुम इंक्रीज कर रहे हो। हाँ, ये ओरिजिनल एरिया था ही नहीं, जैसे तुमने डिप किया और बाहर निकाला तो ऑलरेडी सरफेस टेंशन के फोर्स ने एरिया कम कर दिया, तो व्हाट यू हैव मेजर्ड इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड एरिया, अब तुम इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर, गुड। तो मैं जिनको नहीं समझा वही बताता हूँ, व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर F ये एरिया कम कर रहा है और तुमने F' ही लगाया है फोर्स, तो बैलेंस हो गया ना, बड़ा कैसे फिर, बैलेंस हो गया ना। तुम बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, तुम्हारा वेट ज्यादा होगा तो बेंच टूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो, राइट। तो व्हाट ही इज सेइंग कि जब F इनवर्ट फोर्स है, F' आउटवर्ड है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, तो एरिया बढ़ेगा क्यों, बैलेंस होगा। तो वही तो बात है ना, तुमने जैसे डिप किया और बाहर निकाला उतने में सरफेस टेंशन ने अपना काम कर दिया था, मतलब उसने ऑलरेडी एरिया रिड्यूस कर दिया, राइट। तो अभी तुम क्या कर रहे हो, जितना सरफेस टेंशन का फोर्स था उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे, तो एरिया वापस से बढ़ेगा, दैट इज द आइडिया। यहाँ तक क्लियर, गुड। और हमने वही तो फाइंड किया कि व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग दिस एरिया। अगला टॉपिक है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, उस पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हेनेवर अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड, तो जब भी एक लिक्विड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, इट फॉर्म्स अ मिनिस्कस। मिनिस्कस मतलब कर्व शेप। जिनको मिनिस्कस का मतलब नहीं पता, मिनिस्कस का मतलब होता है कर्व्ड शेप। तो जब भी एक लिक्विड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, इट फॉर्म्स अ मिनिस्कस, मतलब इट फॉर्म्स अ कर्वेचर विच कैन ईदर बी कॉन्वेक्स और इट कैन बी कॉनकेव। तो सबसे पहले तो बताओ कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है। अब मेरे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? he is asking much more relevant questions. Where is the point of reference? मैं यहां से देखूंगा तो ये कॉनकेव सरफेस है, यही सरफेस कॉन्वेक्स है अगर मैं वहां से देखता हूं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स या कॉनकेव के लिए यू मस्ट नो विच इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का एक भी टॉपिक नहीं समझेगा अगर तुमको यही नहीं पता तो डेफिनेटली अगर मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो पहला सरफेस कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। अब होता क्या है, होता यह है कि जब लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो मिनिस्कस बनता है, मतलब कर्वेचर बनता है, मतलब कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस बनता है, राइट। सो whenever a liquid comes in contact with a solid, in contact with a solid, a meniscus, अब ये meniscus हो सकता है इधर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स और कॉनकेव इज फॉर्म्ड। कौन सा मिनिस्कस बनेगा ये डिपेंड करता है लिक्विड के टाइप पे। सो विच मिनिस्कस इज फॉर्म्ड, which meniscus is formed depends on the type of liquid, depends on the type of liquid। आप बोलोगे टाइप ऑफ लिक्विड मतलब क्या, अभी लिक्विड के भी टाइप है, आपको पता है देयर आर लिक्विड्स व्हिच डज नॉट वेट अ सॉलिड। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, अगर मैंने मर्क्यूरी का बकेट भर के आपके ऊपर डाल दिया, नथिंग विल स्टिक टू योर बॉडी, नॉट टू योर क्लोथ्स, पूरा का पूरा नीचे जाएगा, बिकॉज एडेसिव फोर्स इज जीरो, वहां पे एडेसिव फोर्स ही नहीं होता। तो मर्क्यूरी does not stick to your clothes, it does not stick to a solid। तो अब ये मिनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा कि कॉनकेव बनेगा, ये डिपेंड करता है विच लिक्विड आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर मैं केरोसिन या वाटर लेता हूं तो दीज आर द लिक्विड विच बेसिकली वेट्स अ सॉलिड, मतलब वो सॉलिड की सरफेस का स्टिक हो जाते हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड लाइक केरोसिन और वाटर विच वेट्स अ सॉलिड, उस केस में मिनिस्कस बनता है कॉनकेव। मैंने इसको कॉनकेव बोला, मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे, अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा यहां से होगा, अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। रिमेंबर, if if a liquid like mercury comes in contact with solid, then the meniscus so formed is convex, right? So whenever a liquid comes in contact with a solid surface, a meniscus is formed. This meniscus will be concave if the liquid is a liquid which wets a solid, example water or kerosene. It will be convex if the liquid is mercury which does not wet a solid। ज्यादा क्लियर। अब हमको डिफाइन करना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमको डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट करना था। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है मिनिस्कस के ऊपर। अब अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरी है, वर्ड टू वर्ड सुनना पड़ेगा अच्छे से। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसका कांटेक्ट, सॉलिड और लिक्विड का। अरे दो ही तो मटेरियल तुम्हारे पास, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे। कहाँ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे। तो अगर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट, तो इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया टेंजेंट। वेल बाय द वे, सरफेस टेंशन इज अ वेक्टर। क्यों?
कैसे डिफाइन किया था? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है? तो सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन का क्या होगा? डायरेक्शन। तो ये जो टैंजेंट है ना, दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज tangent drawn to the free surface of liquid at the point of contact of liquid and solid. तो ये जो tangent draw किया, this is also the direction of surface tension. We are supposed to define something called as angle of contact. Angle of contact is the angle between the tangent. कहाँ draw किया tangent? At the free surface of liquid. कहाँ पे? At the point of contact and the solid surface. तो ये जो टेंजेंट है इसका एंगल और किसका एंगल? किसका एंगल? अरे एंगल किस में मेजर कर रहे हो? टेंजेंट में। और किस में कर रहे हो? सॉलिड सरफेस में। अरे एंगल कभी भी दो लाइन में मेजर करते हो कि नहीं? तो उसमें से एक लाइन तो हो गया टेंजेंट, तो दूसरा लाइन कहाँ है? सॉलिड सरफेस। वेरी गुड। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये एंगल या फिर ये एंगल। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी भी आप मेजर करते हो फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से, मतलब कौन सा? ये। तो नॉट आउटसाइड, यू ऑलवेज मेजर एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम इनसाइड। तो इसको बोलोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? तो फॉर अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे वाटर, जैसे केरोसिन, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एक्यूट, ऑलवेज लेस देन। एंड फॉर मर्क्यूरी इट इज ऑब्ट्यूस। वेरी गुड, दिस इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस है वो, ग्रेटर देन 90 है वो। तो डिफाइन कैसे करोगे अब? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। तो आप मेजर कर रहे हो अंदर से। फिजिक्स में है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सुन के कभी बोर भी हो गए, रटना नहीं। इफ यू स्टार्ट रटाफिकेशन, मेमोराइजिंग गए काम से। समझ लो ना क्या था एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट तो एंगल है। किस में मेजर किया? टेंजेंट में। और किस में? सॉलिड सरफेस में। कहाँ से? लिक्विड के अंदर से। और लेकिन टेंजेंट तुमने ड्रॉ कहाँ किया? वही बता दो साथ में, कहाँ ड्रॉ किया? एट द पॉइंट ऑफ, लेकिन कहाँ पे? नहीं, कहाँ पे? टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर रहे हो? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब मैं बताता हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। देखो, टेंजेंट तो ये भी है, टेंजेंट तो यहाँ पे भी है, टेंजेंट तो यहाँ पे भी है। तुमने टेंजेंट ड्रॉ कहाँ किया? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिख दो इतना सिंपल, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज। अभी एंगल तो एंगल ही रहेगा, एंगल का डिस्टेंस तो नहीं बन जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे चालू होता है कंफ्यूजन। बिटवीन द टेंजेंट, ये टेंजेंट तुमने कहां ड्रॉ किया? फ्री सरफेस। बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड ये एंगल टेंजेंट में और किस में है? एंड द सॉलिड सरफेस, एंड द सॉलिड सरफेस मेजर्ड, कहां से मेजर किया? मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि आउटसाइड अगर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, आउटसाइड करोगे तो ये ऑब्ट्यूस बन जाएगा और वो एक्यूट हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब मिनिस्कस कॉनकेव बना या कॉन्वेक्स बना, ये तो समझ में आ गया। कॉनकेव कब बनेगा? फॉर लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे केरोसिन और वाटर। और ऑब्ट्यूस मतलब कब बनेगा ये? मर्क्यूरी, फॉर लिक्विड विच डज नॉट वेट। बट द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उल्टा क्यों नहीं हुआ? तो कॉन्वेक्स ही क्यों बना, कॉनकेव क्यों नहीं बना? तो उसका रीजन लाई करता है बिटवीन अगेन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो ये सारा का सारा जो कर्वेचर है ये कौन बना रहा है? कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट। इसलिए मैंने बोला था कि यू हैव टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग, इन नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडहेसिव फोर्स। और आज मैं सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करूंगा, ओनली वन,
ओनली वन वी विल इंट्रोड्यूस. लेट अस टेक द फर्स्ट केस. अब जब मुझे फर्स्ट केस लेना है तो ये छोटा सा ट्यूब था और यहाँ पे ये कर्वेचर बन गया, कॉनकेव बन गया. अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक ही साइड पे फोकस कर रहा हूँ. मुझे पता है ये पूरा ट्यूब है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पे है, इतने से पॉइंट पे है. तो आई विल बी फोकसिंग ओनली हियर. कहाँ पे, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का क्या हो रहा है, कांटेक्ट. तो जो डायग्राम मैं अगला ड्रॉ करूंगा वो एक जूम मैग्नीफाइड डायग्राम है. तो मैग्नीफाइड डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ. तो समझ में आता है डायग्राम कहाँ से आया. ये ग्लास ट्यूब का एक साइड था, तो उसी एक साइड को मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ. सिंपल. फिर यहाँ पे एक लिक्विड था, ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये लिक्विड सरफेस है, इसको भी मैंने मैग्नीफाई करके देखा. अगर आप उसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको वापस से क्या दिखेगा, ट्यूब. तो ये सरफेस ऐसा कंप्लीट होते हुए दिखेगा. यहाँ पे दूसरा साइड आ जाएगा, बट आई डोंट नीड दैट. मेरे को उसकी जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट शो ओनली वन साइड सफिशिएंट इनफ. क्लियर. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि ये जो शेप है ये कॉनकेव क्यों बना. तो रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड व्हाई meniscus is concave, let us consider one molecule, single molecule of liquid right at the point of contact. तो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया which is right at the point of contact, right, point of contact of solid and liquid. Then let us draw sphere of influence. आ गया वापस से sphere of influence. ये आ गया sphere of influence. What do you notice? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट कहाँ पे है, सॉलिड में. वेरी गुड. लिक्विड मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट कहाँ पे है, सॉलिड में. तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, एडहेसिव. एक्सीलेंट. एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा मतलब ग्रेटर देन 25%, लेस देन 50%. 50% तो ऑलरेडी गया, बचा 50 में से 25% के ऊपर किसमें है, एयर. और अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज इन लिक्विड. बराबर. तो यहाँ पे तीन फोर्सेस है. ये जो मॉलिक्यूल है ए, दिस मॉलिक्यूल ए विच इज राइट एट द कॉन्टैक्ट इज एक्सपीरियंसिंग थ्री डिफरेंट फोर्सेस. वन इज एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड विच इज हियर. ये एडहेसिव फोर्स है ड्यू टू सॉलिड, इसको नाम दे देते हैं एपी. अब इसके आगे एपी विल ऑलवेज बी यूज्ड टू डिनोट विच फोर्स, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड. और एक फोर्स है एडहेसिव ड्यू टू एयर, लेकिन एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम. तो एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट. तो निग्लेक्टेड, उसको भूल जाओ. तीसरा फोर्स भी है, कौन सा, कोहेसिव. क्योंकि ये लिक्विड मॉलिक्यूल और नीचे यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल. तो वो कौन सा फोर्स लगाएंगे, कोहेसिव. तो ये कोहेसिव फोर्स आ जाएगा यहाँ पे. समवेयर ओवर हियर यू विल फाइंड कोहेसिव फोर्स. ये कोहेसिव फोर्स है सी. So here onwards, AC will always represent cohesive force. अब मेरे पास दो फोर्स है starting from the same point. What is resultant? Along the diagonal. Excellent. तो यहाँ पे जो resultant है that is along the diagonal. और ये जो resultant है AR, तो AR will always represent resultant force. तो ये cohesive और adhesive का क्या है, resultant. It is inside solid. It is inside solid. Very good. Excellent. यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, 100%. तो अभी बता रहा हूँ. टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉन्वेक्स और कॉन्केव मेनिस्कस इज फॉर्म, हम पहले कॉन्केव से स्टार्ट करेंगे. वी विल कंसिडर मॉलिक्यूल राइट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. फिर जब इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे तो हाफ पार्ट 50% ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड सॉलिड. मतलब डेफिनेटली एडहेसिव फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एक तो डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड का, ऊपर से आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड के अंदर है. तो एडहेसिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अ वेरी स्मॉल पार्ट इज इन लिक्विड. तो यहाँ पे होगा कोहेसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड पे कोहेसिव फोर्स. एंड द रिमेनिंग पार्ट इज इन एयर, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर विच कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि एयर का डेंसिटी होता है कम. तो इफेक्टिवली दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. एक है एपी विच इज एडहेसिव फोर्स, एक है एसी विच इज कोहेसिव फोर्स. और ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट एआर, वो कहाँ पे है, डायगोनल, इनसाइड द सॉलिड.
फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा है कि अगर कॉनकेव बना है तो कॉनकेव ही रहना चाहिए, अगर कॉन्वेक्स बना है तो कॉन्वेक्स ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी कॉनकेव है फिर बाद में कॉन्वेक्स है, बाद में फ्लैट हो गया एकदम। तो फॉर स्टेबिलिटी मतलब द शेप ऑफ द मेनिस्कस शुड रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, उसका एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है दैट द रिजल्टेंट should always be perpendicular to the free surface of liquid। तो अगर आपने नोटिस किया होगा ये एंगल एग्जैक्टली कितना बनता हुआ दिख रहा है, 90। और ये होने के लिए ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल पहले एक्चुअली नीचे था, तो मैं आपको और एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना इजी नहीं समझ में आता, लेकिन समझ गया तो फिर मजा भी बहुत आता है। जैसे ही मैंने ट्यूब के अंदर लिक्विड डाला, डायरेक्टली नहीं बना था ये, इट वॉज इनिशियली फ्लैट सरफेस, इनिशियली इट वॉज फ्लैट सरफेस। तो जब इनिशियली फ्लैट सरफेस था, तब मैंने जब यहाँ पे मॉलिक्यूल कंसिडर किया तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट था सॉलिड में, 25% था लिक्विड में, 25% था एयर में। एयर का फोर्स तो नेग्लिजिबल है, तो बचे कौन से दो फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एंड लिक्विड। वेरी गुड। और रिजल्टेंट कहाँ है? Now do you notice this is not 90 डिग्री? स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस का कंडीशन ये है कि ये जो रिजल्टेंट ने, रिजल्टेंट मतलब ग्रीन लाइन, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसने सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए? ये तो ऑब्ट्यूस है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब कम होना चाहिए ना एंगल, ये एंगल 90 के ऊपर है कि नहीं, तो कम होना चाहिए। अब कम कैसे होगा वो सोचो। अब कम करना है तो इमेजिन ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल था, अब फिलहाल इसको उड़ा देता हूं मैं, ये मॉलिक्यूल ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर शिफ्ट हुआ तो होगा क्या? सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा, बाकी फ्लैट का फ्लैट ही रहेगा। सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पता है क्या होगा? कर्वेचर होना स्टार्ट होगा। ये कर्वेचर, ये मॉलिक्यूल ऊपर तब तक शिफ्ट होता रहेगा, कब तक शिफ्ट होता रहेगा? जब तक रिजल्टेंट का एंगल कितना नहीं बनता। दैट इज वाई द मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज टू क्रीप अप, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, सो दैट द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 विद द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। दैट इज वाई अगर आप अभी देखोगे ऊपर से तो कौन सा शेप दिखेगा आपको? कॉनकेव। यहाँ तक क्लियर? तो बाकी हम लोग अभी करेंगे कल।